नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। और ये जो श्रृंखला चल रही है ब्रश द बसेस में कि भाई आप पीजी का एग्ज़ाम दे चुके हैं आईपीजीटी और आप टॉप हैं और आपको ब्रांच सिलेक्शन करना है तो कहाँ करें। तो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट एपिसोड अबाउट द रोग निदान इन द अगत तंत्र. Then I got one more information that in this academic session, Agat Tantra has been once again initiated. Started at Jamnagar, and so you have one option if you are willing to study in Agat Tantra, then at Jamnagar 2. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का विषय हम लोगों का है कि अगर आपके पास द्रव्य गुण और रसशास्त्र ये ऑप्शन है तो आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी योर क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण एंड द डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र इन द फैसिलिटी कल्पना. एज आई सेड अर्लियर, इट इज़ अ वेरी नेक्स्ट प्रश्न फॉर मी टू मेक एन एनालिसिस ऑन द these two subjects. Fine, I'm trying. So first is the Dravya Guna. So our criteria will be the same. First we have to see the strength and the potency of the first four. That is AIA, Delhi, NIADU, Jaipur, ITRA, Jamnagar, and BHU Varanasi. Then the private colleges with potency, and of course the strength of, if any, rarely the state government colleges. So let us start here about the Dravya Guna department. So if you start Dravya Guna, then the name first strike in your mind or in our generation is of course Professor P.V. Sharma sir. And the department which was nourished by Professor P.V. Sharma ji is at Banaras Hindu University. Then certainly you have in your mind the name of Vaidya Bapalal. Then certainly you have in mind Professor Jagmohan Sharma of the Jamnagar. And at all places, Jaipur and the Delhi, AIA. Which one is best or which one is better? It is a very difficult question, really, in the case of the Department of Dravya Guna. First, see what is the thrust area of the Department of Dravya Guna in the 2023. And it may be none other than the novel herbal drug delivery. I am just modifying it. The novel herbal drug development. So here is the difference between the development and the delivery. The first is the development. Delivery will be to the Vaiseshika Kalpana. Anyhow, but both are interacted. The dosage form, new dosage form, Vaiseshika Kalpana. So this is very unfortunate, really very unfortunate, that at many centers of where the PG is in the Dravya Guna or in the Rasashastra, or basically if I am talking about the Dravya Guna, everywhere this aspect of the drug development has not invited many faculty members as well as the PG scholars to work upon this, to make it a thrust area. Whole world is working on the herbal drug development. Every institution related to the, I can say, with the drug development, they are working with this fundamental phenomena of the drug development, and that is of the herbal origin. But Dravya Guna was lacking.
And I'm not going to today discuss what are the reasons and why it was happening. But it is a very fortunate condition now that since last 1 decade, पिछले 10 वर्षों से द्रविड़ विभाग अपनी थीम और थ्रस्ट एरिया पर बहुत सारी जगहों पर काम करने लगा है। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सभी द्रविड़ के हमारे सीनियर्स, हमारे मित्र सभी, क्योंकि धीरे धीरे थ्रस्ट एरिया लोग पकड़ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, तो जब ड्रग डेवलपमेंट का फील्ड है और इसमें फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास चारों जगह ऑप्शन है कि आप द्रविड़ में एडमिशन इटरा में भी ले सकते हैं, NIADU जयपुर में भी ले सकते हैं, IIA दिल्ली में भी ले सकते हैं और BHU में भी, वाराणसी में भी ले सकते हैं, तो आपको कहाँ लेना चाहिए, कहाँ ड्रग डेवलपमेंट की आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। तो चलिए, इन विट्रो और इन वाइवो की तो कंडीशन है ही है, एक नया क्षेत्र है, और नया क्या, बहुत पुराना क्षेत्र है, लेकिन हम लोग उसको अब अडॉप्ट कर रहे हैं, यूँ कह लीजिए। इन सिलिको, तो इन सिलिको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जामनगर में और अवेलेबल है जयपुर में। जामनगर का भी द्रविड़ डिपार्टमेंट अपने आप में वेल एस्टेब्लिश्ड है, और मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की अभी 1 घंटा पहले। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने सबसे पहले फ़ोन बात लगाया ठीक 9 बजे महानिदेशक CCRS, मतलब डायरेक्टर जनरल CCRS प्रोफेसर RN आचार्य जी को, और उन्होंने कहा कि बस सर अभी पहुंचा हूँ ऑफिस। तो मैंने कहा वाह, मज़ा आ गया, आप एकदम एक्यूरेट राइट टाइम। अगर बॉस आए तो फिर स्टाफ का क्या कहना है, वो तो आएगा। बोलते कि नहीं, स्टाफ का टाइम 9:30 है। मैंने कहा तो ये और अच्छी बात है, आई हाईली अप्रिशिएट इट कि बॉस इज़ देयर अर्ली टाइम बाई फिक्स 9। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा डिफरेंट करती हैं मास से। और इस मामले में ये जो हमारे एज ग्रुप की मित्र मंडली है हम लोगों की, हाँ सही शब्द मैंने प्रयोग किया, हमारे एज ग्रुप की जो मित्र मंडली है, हम 15-20 लोगों की ऑल ओवर कंट्री, तो इस मामले में थोड़ा सा हम लोग ख्याल रखते हैं, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, डेडिकेशन। तो रवि भी उसी के हिस्से हैं हम लोगों के साथ, तो वो बिल्कुल ठीक 9 बजे हाजिर थे अपने ऑफिस में, और 9:30 बजे, जबकि उनका निश्चित रूप से उनका PAPS नहीं आया होगा क्योंकि 9:30 टाइम है, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ तो टाइम से चलेगा। टेक्निकल स्टाफ पहले आ सकता है DG के दबाव में, बट मिनिस्ट्रियल नहीं आएगा। ये परसेप्शन है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ठीक, तो मैंने बात की अपने मित्र प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य जी से, और उन्होंने बहुत ही एनालिसिस के साथ सारी बातें बताई। तो फैसिलिटीज़ द्रविड़ की थ्रस्ट एरिया में इन सिलिको की जामनगर में उपलब्ध है और जयपुर में उपलब्ध है। मैंने BHU में भी बात की, तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत पोटेंशियल और स्ट्रेंथ का डिपार्टमेंट है। लेकिन इन सिलिको फैसिलिटीज़ अभी शुरू नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, अभी मेरे एक मित्र ने दावा किया कि वो 2023 के एंड तक एंटी माइक्रोबियल स्टडीज़ की सारी फैसिलिटीज़ और एंटीऑक्सीडेंट और सारा जितना भी ये एनालिटिकल चीज़ें हैं, वो सब की फैसिलिटीज़ वो लोग यहाँ पर डेवलप कर लेंगे। और इस समय भी काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और वो बहुत यंग चैप, डॉक्टर संजीव नाम है उनका, और दे आर फुल्ली डेडिकेटेड टू सर्व द सब्जेक्ट इन इट्स थ्रस्ट एरिया। Point should be noted. Then Jaipur has a very center of excellence in Dravigun under the leadership of Professor Meeta Kotecha madam, and the many short-term courses on the cosmeceuticals and as well as some on other very need of our projects is going on there. And young chaps, they are also very working, Dr. Sumit and the many more. So these institutions are at par. What is the issue about the IIA Dravigun? Yes,
Professor Tanuja Nesri madam is there, and with the charge of the director. Professor Bida Kotecha is also Pro Vice Chancellor in NIADU, but the point is that the systematic, appreciable thing of all these seniors are that with the administrative duties, they are dedicated to the subject also. So, the whole department of IA is also fabulous, good. If you think about the other side, that is the many more exposures of the thrust area of the Dravigun. So almost all these 4 institutions are at par. Jamnagar, Jaipur, IA. IA has the potency to collaborate with anyone in Delhi, whatsoever the things are required. That maybe a lacuna in Jamnagar, you have to go to Vadodara, the Gandhinagar, if you don't have in the ITRA. BHU is on the same platform with the collaboration with the Sathi and the CDC and the many more, whatever you want to do in the field of herbs. Here is the limitation for the metal and the minerals, but herbs, there is no limitation in the Banaras Hindu University. Everything is available at one campus, on your choice, on your fingertip. So this is about these 4 departments. Now, if you come to the other side exposures, see, for the development of a scholar, it is really necessary what the faculty is doing. And I said to the Professor Abhidan Acharya that we are on the same wavelength. If the senior faculty or the junior faculty is having some organizational interest and taking the responsibility of the institute or some administrative setup, set in the administrative setup of the institute, ultimately students got training and of all those kind of work, the management, organization, administration. Of course, the academia is the first priority. But the question is the faculty. If the faculty in the department is having all these responsibilities, students will train automatically. In Banaras Hindu University and specifically in the Dravigun department, people are so busy having a statutory position, but they are busy in the clinical practice. So this is the one additional exposure for those kind of the students who have in mind, I have not able to get enough marks to get a clinical branch. Here the position of the faculty is like that. No matter what is the place, patient service is more important. Fine. If we come to the private sector, here also I got the feedback, and the feedback is very appreciable. Professor Acharya said कि आनंद जी आपने तो अचानक पूछ दिया, खैर मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है। हाँ, अलवा बहुत अच्छा है, उडुपी बहुत अच्छा है, वर्धा में भी अच्छा काम हो रहा है, हासन में भी अच्छा काम हो रहा है, और उन्होंने इन 3-4 प्राइवेट कॉलेजेस का नाम लिया कि वहाँ द्रविगुण का इन द रियल सेंस अच्छा कार्य हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको द्रव्यगुण ऑप्ट करना है, अगर इन 4 जगहों में नहीं मिल रहा है और आपको द्रव्यगुण की फर्स्ट एरिया में काम करना है, तो ये जगह हैं। दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन ऑप्ट द्रव्यगुण: हासन, उडुपी, अलवा and some more institutions. Then that question in the state government's answer was the same what I am getting with each and every one.
It is a rare phenomena कि the state governments are funding well to these government Ayurvedic colleges in spite of the having PG degrees, I mean PG specialties, PG courses. The facilities are under question. So friends, here if you have something in your mind, Dravigun, these are the analysis, these are the faculty available. Fortunately, the higher faculty is available at each center in the Dravigun department. Yes, maybe Jamnagar, but yes, there are international exposed faculty. I want an answer. There is no dearth in the field of Dravigun about the higher faculty. Galaxy M14 5G Sport. So, yes, when I say having exposure of WHO, Dr. Bhupesh Patel is there in Jamnagar. Galaxy M14 5G. And in the site paraphernalia, in the place of Dr. V. Ravishankar sir, our Dr. Mukesh is working very well. So these things are just, see, मुझे याद आता है जब हम जामनगर में थे तो हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दामोदर पांडे जी जो 2002 में रिटायर हो गए, तो मैं उनको टेलीफोनिक हेड कहा करता था क्योंकि वो टेलीफोन पर ही सारे मैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता था और उन्होंने मुझे कभी किसी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए ना नहीं किया। ये भी एक रिकॉर्ड है और हम लोग काम कर सकें वहाँ। तो वो कहते थे कि ये डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर सुब्रत डे ये दोनों हर थीसिस में हम लोगों के डिपार्टमेंट में ऐसे रहते हैं कि जैसे कि चिपक गए हो। तो वो बहुत ज़रूरी था, एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से थे, एक फार्माकोलॉजी से थे, तो रसशास्त्र तो अभी मुझे रसशास्त्र पर ही बात करनी है, लेकिन देखिए ना मैं द्रव्यगुण में ही बात करने लगा इसकी, क्योंकि रसशास्त्र और द्रव्यगुण के जो को गाइड्स हुआ करते थे जब हम लोग जामनगर के दिनों में अपने थे, तो यही दोनों लोग हुआ करते थे, डॉक्टर वी रविशंकर एंड डॉक्टर सुब्रत डे। तो वो पैटर्न अभी भी वहाँ चल रहा है। और प्रोफेसर आचार्य जी ने जो खुल के हम लोगों ने आप सुबह एक अच्छी गुड मॉर्निंग की, उसमें यही था कि हम लोग जब पीजी कर रहे थे या वो जब पीजी जामनगर से कर रहे थे, चलिए मैं तो बीएचयू से पीजी हूँ तो मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े उनके एक्सपीरियंसेस से अलग हैं जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, क्योंकि बीएचयू में रसशास्त्र डिपार्टमेंट प्रोफेसर दामोदर जोशी सर ने अच्छी तरीके से साइंटिफिक वे में डेवलप किया और सपोर्ट उनको मिला हमारे प्रातः स्मरणीय डॉक्टर एस के दीक्षित सर से। तो ढेर सारी हम लोगों ने बातें की आपस में, और वो भी थोड़ा खाली थे। जैसे मैंने कहा कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ तो है नहीं होगा, टेक्निकल स्टाफ भले आया हो, लेकिन ही वॉज इन हिज ऑफिस एट 9 o'clock। आई एम प्राउड ऑफ प्रोफेसर रवि, रियली इट इज़ वेरी प्लीजिंग फॉर मी एंड फॉर मेनी ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस। सो फ्रेंड्स, तो द्रव्यगुण में आपको अगर चयन करना है तो चारों ही संस्थाएं मोर और लेस बराबर हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। और प्राइवेट में जैसा कि मुझे फीडबैक मिला, जो टॉप है वो हर विधा में टॉप है। केएलई के भी नाम लिया प्रोफेसर आचार्य ने कि केएलई का भी द्रव्यगुण डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड है, अच्छा है। तो जो अच्छा है वो अच्छा है, और वो अच्छा तभी है जब सभी विधाओं में अच्छा है। इटरा जामनगर या एनआईडीयू जयपुर या आईआर दिल्ली या बीएचयू के सारे डिपार्टमेंट्स में स्ट्रेंथ है तभी वो अच्छा है। ऐसे ही एसडीएम हासन के सारे डिपार्टमेंट्स में स्ट्रेंथ है, एसडीएम उडुपी के सारे डिपार्टमेंट्स में स्ट्रेंथ है, केएलई बेलागावी के सारे डिपार्टमेंट्स में स्ट्रेंथ है। तो अब इनको इंडिविजुअलाइज करके क्या देखना, सब एक साथ ही हैं। तो जो एक अगर डिसिप्लिन, हाँ उनके आपसी डिसिप्लिन में थोड़ी सी बातें हो सकती हैं। तो द्रव्यगुण में इतना ही, ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक मेरी पर्सनल ओपिनियन में कहूँ तो अब आज बात करके या फिर थोड़े से थीसिस टाइटल देख करके कहीं कहीं के, मैं हर जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी भी वो द्रव्यगुण के थ्रस्ट एरिया से बहुत दूर लोग काम कर रहे हैं। जो द्रव्यगुण के थ्रस्ट एरिया है उस पर पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, लेकिन द्रव्यगुण डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। इससे अधिक तो स्पष्ट मैंने बोल नहीं सकता। पूरा विश्व द्रव्यगुण डिपार्टमेंट की थ्रस्ट एरिया पर काम कर रहा है। सारी साइंटिफिक, ईच एंड एवरी साइंटिफिक लेबोरेटरी ऑफ होल वर्ल्ड हु आर इन्वॉल्व इन द थीम ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट, दे आर वर्किंग ऑन द थीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण। बट
most of the department of Dragoon back one decade were not on their priority these thrust area, and therefore people have snatched the objectives from the Ayurveda, laboratories snatched objectives from Ayurveda, and they are doing, and we are saying yes, it is like that. Yes, day before yesterday there was a news, national news in the Hindustan. जामुन से मधुमेह की बहुत अच्छी दवा 2-3 दिन में शुगर कम कर देगी, और किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ पर एक हेडिंग थी, आयुर्वेद में भी वर्ड है जामुन का वर्णन। ये नहीं कहा ICMR ने कि ये उन्होंने कॉन्सेप्ट ही आयुर्वेद से लिया। उन्होंने ये शो किया, व्हाट दे आर शोइंग कि दिस कॉन्सेप्ट दे डेवलप्ड ए ड्रग फ्रॉम द जामुन ओन, यस इट इज समवेयर रिटन इन आयुर्वेदा टू, बट द रेशियो इज द रिवर्स। दे हैव टेकन लीड फ्रॉम द आयुर्वेदा। तो उनको ये भी शब्द नहीं लगाना चाहिए था ना, उनको ये कहना चाहिए था कि इसकी प्रामाणिकता आयुर्वेद में है, हमने बस आज की तारीख में इसको ठीक किया है, आइसोलेट किया है मॉलिक्यूल। नहीं, हमने बहुत बड़ा काम किया है, और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, भी वर्ड है वो। चलिए, जब हम नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे ही ना, तब तक हमारे ऊपर छोड़े रहेंगे। लेकिन चलिए, बड़ी खुशी हुई मुझे, रियली बहुत खुशी हुई कि पिछले एक दशक से द्रव्यगुण के कुछ सेंटर्स द्रव्यगुण के, जैसे टॉप क्लास भी हैं, प्रियोरिटी वाले भी लोग हैं, प्रीमियर सेंटर्स भी हैं, वी आर वर्किंग ऑन द ड्रग डेवलपमेंट। Enough. So, thank you, Professor R.N. Acharya, for giving me all this feedback, and all others to whom I talked. Now come to the Rasashastra. Very tough question for me. Okay, but I am trying to compare it. First, these 4: BHU, Jaipur, Jamnagar, and Delhi. Okay, keep aside Delhi. Come first, BHU, Jaipur, Jamnagar. Professor Harisankar Sharma ji from Jamnagar. And the founder, Professor Vasudev Bhai Mushankar Dwivedi sir. BHU, yes, founder is Ram Sushil Singh T.N. Sharma, but in the real sense, Professor Damodar Joshi sir, product of Jamnagar. He completed HPA from Jamnagar. Contemporary senior junior to Professor H.S. Sharma, रामनारायण स्वामी जी एग्जैक्ट। तो ये तीनों जगहों पर ये तीन विधाएं 3 तरीके से चली। प्रोफेसर दामोदर जोशी जी ने साइंटिफिक इनपुट दिया, first in the Rasas, establishing metallurgical study, pathological study, pharmacological study in the atmosphere and the periphery, and all the collaborations of the Banaras University. Rest institute followed, no doubt about it. But the classical strength of the Jamnagar under the Professor H.S. Sharma is unparalleled. Practical aspect of the Professor Swamiji at Jaipur is unparalleled. अय्या की तो अभी बात न करें, क्योंकि अभी तो उसका प्रादुर्भाव काल बहुत पीछे है। फिर अय्या अपने स्थान पर है और आज चारों के साथ है। तो जो नया है वो कम महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक ओरिजिन के ऊपर बात की। तो यहाँ जब हम बात करते हैं और यहाँ पर जब एक साथ देखते हैं, तो अगर मैं बात करूँ कि आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोजर सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, एक ही उत्तर है, जामनगर। क्योंकि वहाँ डबल बेनिफिट है ना। जामनगर की अपने रसायन विभाग की तो जो स्ट्रेंथ और पोटेंशियल और वर्किंग कल्चर है वो तो है ही है, साथ में वहाँ डबल IPS है। तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जामनगर के लिए। एंड विद द स्टेटस ऑफ ITRA it is more approachable now. I mean status of INI, Institute of National Importance, when these are amalgamated. That's a different question, how the amalgamation
and how the faculty positions. It is entirely different question, not issue of today discussion. But if you see the facilities and the facility wise, Jamnagar is having some upper hand in the sector of the manufacturing on its own virtue of the working culture and the exposure. I talked to the Professor Vijay Padgiri, the head of the department there, and I do agree. Then come to the Jaipur. It is having its own working culture, strength, संप्रदाय मैंने पहले ही कहा, in the field of रसशास्त्र. और राजस्थान में तो रस औषधियों का बहुत अच्छा बड़ा प्रयोग रहा है. रस औषधियों का प्रयोग जितना और रसशास्त्र की प्रक्रियाएं जितनी राजस्थान में हैं उतनी तो कहीं नहीं. और अगर मैं वर्तमान में देखूं तो अभी अभी लोग 10 साल पहले रिटायर हुए हों या 15 साल पहले रिटायर हुए हों तो प्रोफेसर एल.के. द्विवेदी सर हैं, जिनको आप इंसाइक्लोपीडिया कह दीजिए. कुछ भी पूछिए शास्त्री, कुछ भी कहीं भी कभी भी 20 रेफरेंस. अभी उन्होंने आयुर्वेद क्लिनिकल है कि नहीं जो हमने, अरे रसशास्त्र क्लिनिकल है कि नहीं हमने स्टार्ट किया, उन्होंने 15 संदर्भ ग्रंथ निकाल दिए जो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले जो रसशास्त्रियों का है. तो हर जगह की अपनी अपनी एक विधा है, उसमें अपनी अपनी वरिष्ठता है, अपनी अपनी श्रेष्ठता है. देयर इज ए सुपीरियरिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट इन द फैकल्टी. सुपीरियरिटी इन द सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कल्चर, एंड पीपल आर वर्किंग. अब रही बात दिल्ली की, तो प्रोफेसर पी.के. प्रजापति जी तो वहाँ से जोधपुर प्रस्थान कर गए वाइस चांसलर के रूप में. अब सारा दारोमदार डॉक्टर गालिब के कंधों पर है. और डॉक्टर गालिब और मेरे बीच में ये संबंध है कि डॉक्टर गालिब हमें इतना सम्मान करते हैं और मैं डॉक्टर गालिब को इतना स्नेह करता हूँ कि हम लोग तथ्यों पर बात ही नहीं करते. हम एक दूसरे को हर्ट करना ही नहीं चाहते. वो भी हमसे बस धीरे से पूछेंगे व्हाट्सएप पर कि सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस. मैं भी उनको धीरे से अपनी ओपिनियन दूंगा और फिर उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस. वो धीरे से आंसर देते हैं. लेकिन हम अपने डिफरेंसेस जो हमारी थॉट प्रोसेस है बहुत सारे इश्यूज़ पे हम पब्लिक में नहीं लाते हैं, जिसके पीछे एक दूसरे की रिस्पेक्ट है. लेकिन हाँ, जब कॉज ऑफ द सब्जेक्ट आता है तो हम बोलते हैं और वो भी बोलते हैं. हम लोग कभी एक साथ बोलते हैं, कभी अलग अलग बोलते हैं. तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द इशू. So what are the facilities there? In the true sense of the facilities of the Rasas and the facilities of All Indian Institute of Delhi. Number one lacuna at Delhi is number of faculty. पता नहीं इटरा और अय्या की हालात, वहाँ फैकल्टी पोजीशन ज़्यादा रही. जयपुर और बनारस फैकल्टी पोजीशन के मामले में बड़े रिच हैं, वहाँ कम है. जब आप फैकल्टी पोजीशन ही आपकी कम रहेगी तो निश्चित रूप से काम पर प्रभाव पड़ेगा. अभी एक दो लोग इधर से उधर हो रहे हैं, ओपन करना ठीक नहीं है तो चलें. तो वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, मास्टर हैं प्रमोद जी तो, और उनके भी मास्टर हैं डॉक्टर गालिब. एक ये जो पब्लिकेशन का कल्चर जामनगर में आया, अब मैं खुद तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, यही लोग बताएंगे. प्रोफेसर पी.के. सरकार बताएंगे, डॉक्टर प्रमोद बताएंगे ये कल्चर कहाँ से इनहेरिट हुई, कब से शुरू हुई और कब से ये जो जामनगर इस विधा में बहुत श्रेष्ठ हुआ. मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ हम लोगों ने मिलकर काम किया और वो सीरीज़ काफ़ी दिनों तक चली. तो अब जहाँ डॉक्टर प्रमोद हों और जहाँ डॉक्टर गालिब हों, वहाँ से पब्लिकेशन तो अच्छे अच्छे निकलेंगे, तो निकल रहे. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करिए तो अभी उन्हें बहुत काम करना है. अब आगे आते हैं जयपुर की स्ट्रेंथ. तो भाई डीयू के होने के बाद तो कुछ उनके यहाँ फैकल्टी भी अच्छी है, सुविधाएं भी बढ़िया हैं, NABL क्रेडिटेड उनकी लैबोरेटरी है, एनिमल हाउस है, हर चीज़ है उनके पास. और वो रसशास्त्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भी और अच्छा कर सकते हैं. प्रोफेसर अनुपम की लीडरशिप है. मैं थोड़ा द्रव्यगुण रसशास्त्र के टीचर्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सब हमारी मित्र मंडली में है. बाकी अगर विषयों में मैं नाम ज़्यादा लेता तो थोड़ा खतरा था.
तो इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर, और ये प्रोफेसर अनुपम तो खुद ही कहते हैं कि बाय द वे ये तो डिग्री का लेन देन होता है किस सन में, उस हिसाब से मैं थोड़ा सीनियर हूँ उनसे। डिग्री ईयर ऑफ पासिंग। तो यही कहते हैं कि बॉस देखिए इसमें ये है कि भाई BHU की टर्मिनोलॉजी में हम लोग थोड़ा बॉस वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे से सीनियर के लिए। तो उनका ही कहना है कि अभी मैं एकेडमिया में तो नया आया हूँ, और बाकी तो वाकई डॉक्टर अनुपम, प्रोफेसर अनुपम का काट नहीं है। आप उनसे ड्राफ्टिंग करा लीजिए। अभी उन्होंने पेटेंट और IPR पर की है, और अभी कितनी बार वो जिनेवा और US वगैरह वगैरह। तो इनका एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और मैं उससे समझता हूँ कि जयपुर के रसायन के विद्यार्थियों को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो ये भी एक क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए कि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि जयपुर में बैक 2002 एक स्टूडेंट, मैं नाम ले लूँ उसका, डॉक्टर रेणुका जोशी है, तो उसके पास जामनगर में रसशास्त्र लेने की सुविधा थी। जब सब अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, जयपुर में भी रसशास्त्री उसको मिल रहा था, जामनगर में भी रसशास्त्री मिल रहा था। तो जयपुर में उसने रसशास्त्र नहीं लिया, जामनगर में रसशास्त्र लिया। लोगों ने जयपुर में पूछा कि भाई तुम जामनगर के रसशास्त्र क्यों लिए हो, तो उसने एक कारण बताया था जो मुझसे ही संबंधित था। तो अगर ये इंडिविजुअल फैकल्टी का कुछ फ़ायदा होता है, तो आज जयपुर के पास भी एक एसेट है, प्रोफेसर अनुपम है, जो कि वहाँ पर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक अच्छी ट्रेनिंग रसशास्त्र के स्कॉलर्स को दे सकते हैं। फिर उस समय सारे लोग जयपुर में मेरे सीनियर ही थे, लेकिन अभी तो मैं 2 साल पुराना लेक्चरर था, लेकिन सी ऑप्टेड जामनगर, and now she is working in corporate sector very well, having a villa in Goa, and her thesis is remarkable. Her working culture in Jamnagar was remarkable. I just narrate her all co-learners of that time, Dr. Dipali Kode, P.K. Sarkar, Piyush Gandhi, Suhas Nayak, Bharat, Persania, Upen Jhala, many more. अब किसी अनुराग सिंह राजपूत, अब मैं किसी एक अपूर्व भट्ट नाम छोड़ूं तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, लेकिन मुरलीधर, सबसे अच्छा मुरली बजाने वाले, मतलब बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति, आज SDM उडुपी की फार्मेसी को कहाँ ले गए हैं। तो ये एक्सपोजर है, ये स्ट्रेंथ है। आपका डिपार्टमेंट आपको क्या बना सकता है, और आप चाहें तो क्या बना सकते हैं। इसलिए मैंने इतने सारे नाम रसशास्त्र के लिए। अब बनारस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए रसशास्त्र में, ये बड़ा एक प्रश्न है। मैं कैसे अपनी एडवोकेसी खुद करूं, तो मैंने पिछले टर्म में कहा था कि गवई साहब ने राहुल गांधी के केस में पूछा था, तो मैं वैसे ही करूँ। देखिए अगर आप फैकल्टी स्ट्रेंथ देखें, फैकल्टी पोजीशन देखें, तो बनारस फुलफिल्ड है पूरी तरह से। एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज होने वाली है, तो फैकल्टी की कमी हमारे यहाँ नहीं है। आई मीन BHU के नहीं, मैं इस समय न्यूट्रल हूँ, हमारे शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। तो BHU की में फैकल्टी बहुत है। फिर BHU की सारी फैसिलिटी जो एक कैंपस की है साइंस की, वो है ही हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्रोफेसर D जोशी सर ने सबसे पहले यहाँ पर शुरू की थी मेटलर्जी IIT के साथ, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सब वो सारी परंपराएं चल रही हैं, कैंसर सेल लाइन एटसेट्रा। हाँ, और ये सारी चीज़ें दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी हैं, चल रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मेरी समझ में आती है, अभी मैंने जयपुर से बात की डॉक्टर राकेश से कि भाई यही सवाल उनके सामने मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है, उसको सिर्फ रसशास्त्र मिल रहा है, तो दिल्ली, जयपुर, जामनगर, बनारस में से वो किस रसशास्त्र डिपार्टमेंट को चूज़ करे। तो उन्होंने बड़ी न्यूट्रल एनालिसिस की। डॉक्टर राकेश, थैंक यू फॉर दिस वेरी न्यूट्रल एनालिसिस व्हाट यू डिड रियली। सो ही सेड कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, discipline, punctuality, regularity is inherited part of the Department of Rasashastra in Mrs. Kapna of the Banaras Hindu University. I asked him, I asked everyone, when Professor Acharya said कि Alwa is the best, I requested him कि what is the reason? He told me the reason. In the same way, I asked Dr. Rakesh, what's the reason? Why BHU is having, BHU products are having this characteristic feature, that they are capable to do many administrative works, organizational works, somehow punctual, regular, etc. So
he explained his views, and so this is the scenario of all these four premium institutions. You can opt anyone. Jamnagar is having upper hand with the manufacturing and the east unit of the IAPS. Jaipur, it's a specific working culture. Delhi is the Delhi capital. वैसे BHU के कुल गीत में है कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, लेकिन दिल्ली तो भाई दिल्ली है, दिल्ली दरबार है। और फिर आप BHU आइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रसायन विभाग में, तो इसकी भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और हर जगह पर समय अनुकूल कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। प्रोफेसर एच एस शर्मा से रिटायर हुए तो क्या जामनगर बंद हो गया, या कोई और हुआ तो क्या उस जगह की संस्था बंद हो गई? ऐसा कुछ नहीं होता। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। कुलवंत सिंह साहब कहा करते थे जामनगर में हम लोगों को। एनी हाउ, थोड़ा सा आज मैं रिलैक्स मूड में हूँ और बातें कर रहा हूँ आपसे, तो क्योंकि ये तो मन की बात हो गई है ना, तो मन के बात के ढेर सारे एपिसोड्स आपने सुने हैं, तो यहाँ भी मन की ही बात चल रही है मित्रों। अब आता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको रससास लेना है तो कहाँ लें। तो बड़ी अच्छी ओपिनियन आई। देखिए KLE है ही है अपनी जगह पर, जाडा साहब है ही हैं, उडुपी में है ही हैं लोग, फार्मेसी एक्सपोजर है ही है, रविंद्र और मेनी और लोग हैं ही हैं, हासन में गोविंद है ही हैं, विनय है ही हैं। अब मैं थोड़ा चमक रहेगा आप लोगों के नाम जाके प्रोफेसर डॉक्टर नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि बाय द वे मैं देखता हूँ तो पूरे रससास में हमसे सीनियर जो कि अभी वर्किंग रोल पे हैं तो एक ही व्यक्ति हैं या दो व्यक्ति हैं भाई, प्रोफेसर PK प्रजापति जी और प्रोफेसर KRC रेड्डी जी, जो लोग रिटायर नहीं हुए हैं और इस सेक्टर्स में हैं। हाँ, प्रोफेसर अस्मिता मैडम कहेंगे कि हमको भूल गए, मैं भी तुम्हारी सीनियर हूँ। यस मैडम, आप भी हमारी सीनियर हैं। सो लेकिन हाँ, थोड़ी सी मैं अगर ये खाली इन चारों की बात करता हूँ तो कभी कभी कहता हूँ कि भाई अब तो प्रजापति सर जोधपुर चले गए, तो अब ये मैं कहता हूँ कि भाई अब इन चारों जगहों में मैं नंबर 2 हूँ। नंबर 1 तो प्रोफेसर KRC रेड्डी जी हैं इन द सीनियरिटी। सो एनी हाउ, तो अगर इधर चलेंगे तो ये सारे मित्र हमारे हैं जिनका मैंने अभी नाम सहित आपको बताया, और बहुत अच्छी लगा बात, और बहुत गौरव का भी विषय है कि नडियाड की प्रशंसा ज़रूर की जानी चाहिए कि वहाँ का जो रससास डिपार्टमेंट है और जिस तरीके से वहाँ पर डेडिकेशन से फार्मेसी प्लस थीसिस वर्क बहुत अच्छे हो रहे हैं, अनडाउटेडली अप्रिशिएबल। पपरोला भी एक समय में था जब पपरोला की देखिए भाई, हमारे पास तो थीसिस आती रहती थी जब तक मैं थीसिस एक्सेप्ट करता था। अब मैं थीसिस वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं एग्जामिनेशन सिस्टम से एकदम अलग हो गया हूँ। UG का एग्ज़ाम लिए हुए मुझे 10 साल हो गया, और PG का भी एग्ज़ाम लिए हुए मुझे 10 साल हो गया होगा। 10 साल नहीं तो 7-8 साल तो हो ही गया है। अब मैं एग्ज़ाम के प्रोसेस से टोटली अपने आप को अलग कर लिया हूँ, क्योंकि अगर मैं ही करता रहूँगा तो ये मेरे सारे मित्र जो कि अभी मैंने नाम लिए, ये लोग कब करेंगे। तो अब तो मैं सब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जो अलग फैकल्टी है प्रोफेसर्स की, जो हम लोगों से 10-10 साल बाय द वे वर्च्यू ऑफ द सीनियरिटी हैं जूनियर, तो मैं सब उन लोगों को प्रमोट करता हूँ कि अब परीक्षा से संबंधित अब तो मैं कॉन्फ्रेंसेज और लेक्चरशिप भी दूसरों को ही देने लगा हूँ, क्योंकि अब वही मार्गदर्शक मंडल वाली व्यवस्था में आने की इच्छा है और संभवतः आ भी गया हूँ। सो बस ऐसे ही है। तो इनमें अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आप रससास डिपार्टमेंट देखिए, तो अब देखिए लखनऊ से कल ही हमारी सीनियर प्रोफेसर अंजना मैडम आई थी, अकेली हैं, और स्टूडेंट्स की संख्या स्ट्रेंथ 8-9 की है, तो एक व्यक्ति 8 स्टूडेंट कहाँ से करा पाएगा। और फैसिलिटीज़ माशाल्लाह। आप बनारस में आ जाइए, संपूर्णानंद में, अभी अब पड़ोसी हैं तो नाम लेना ज़रूरी है, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी, या जो भी, मैं तो अच्छे सेंस में ही बात कर रहा हूँ। अब फैकल्टी यहाँ अच्छी है, 4 फैकल्टी है बनारस में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UP में। फैसिलिटीज़ उनके यहाँ रिसर्च की है कि उनको हर बात के लिए दौड़ना है दूसरी जगह पे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स की, या हरिद्वार, वहाँ भी बहुत पुराना रससास डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छी फैकल्टी वहाँ भी है, PhD होल्डर्स हैं, ढेरों लोग हैं, अच्छे उत्साहित लोग हैं, काम कर सकते हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, सुची हैं, यादवेंद्र हैं। तो आप एडमिशन लीजिए, द्रविड़ रससास में एडमिशन लीजिए, और
ये आज ही 2 विषय की बात है, तो आपको समझिए कि भविष्य आपका बहुत ही सुरक्षित है, बशर्ते कि आप काम करें, बशर्ते कि आप काम करें। और अर्थशास्त्र में फिर दोहराता हूँ कि आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5। एकेडमिया, क्लिनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सब मैं थोड़ा उल्टा सीधा कर दे रहा हूँ, रेगुलेटरी और रिसर्च तो आपका ऑलमोस्ट सही है। देन वंस अगेन एकेडमिया, रिसर्च, क्लिनिकल, रेगुलेटर, मैन्युफैक्चरर, ये 5 ऑप्शन अर्थशास्त्र के पास है। द्रव्यगुण भी 4 में जाता है, 5वां हिस्सा अलग हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग। बाकी सारे सब्जेक्ट्स 3 पर रहते हैं, एकेडमिया, क्लिनिकल, रिसर्च। लेकिन हम 2 द्रव्यगुण और अर्थशास्त्र, द्रव्यगुण हम जाते हैं इस पर भी, रेगुलेशन में भी। अब द्रव्यगुण के लोगों को रेगुलेशन का कितना एक्सपोजर है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये द्रव्यगुण के साथ ही ध्यान दें, क्योंकि जो भी रेगुलेशन की पोस्ट आती है वो इस तरीके से आती है, MD आयुर्वेद अर्थशास्त्र भेषज कल्पना / MD द्रव्यगुण। हाँ, CDSU की जो लेटरल पोस्ट आई उनमें ये था, लेकिन MD आयुर्वेद द्रव्यगुण के बच्चे कितना रेगुलेशंस के लिए एक्सपोज हैं वो लोग जाने, कितना उन्होंने अपने सिलेबाई में दिया है वो लोग जाने। बराबरी का दर्जा तो आपको यहाँ मिल जा रहा है, हैश करके ऑब्लिक करके आपको एडवर्टीजमेंट में पोजीशन मिल जा रही है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज में आप खुद देखिए आपका सिलेबाई कितना है और अर्थशास्त्र भेषज कल्पना का सिलेबस में कितना रेगुलेशन है और आपके सिलेबस में कितना रेगुलेशन है। ट्रुथ बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, बोल रहा हूँ। तो अर्थशास्त्र का यहाँ अपर हैंड है रेगुलेशन में, अपने सिलेबस की वजह से, अपने सिलेबस की वजह से। और मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे पास है ही। तो अगर इन 5 में आपको डेवलप करना हो एक जैसा, तो आप उस जगह को ढूंढिए जहाँ पर आपको इन 5 का एक्सपोजर मिलता हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और ये चैनल जो ये सीरीज़ जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली, एक हम लास्ट लेंगे अगले, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि स्वस्थ योग रखें, और उसमें फिर सिद्धांत, दर्शन, रचना शारीर और क्रिया शारीर, इन विषयों पर बोलना। तो सूर्य को दीपक दिखाना है, सिद्धांत दर्शन तो अपने आप में ही सब कुछ लिए पड़ा है, पूरा आयुर्वेद समाहित है उसमें हम क्या बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या ना। हाँ, अगर ना बोलूँ तो हमारे अभी भावी डीन जो 1 अगस्त से हो रहे हैं हमारे यहाँ, जब तक ये आपके पास एपिसोड पहुँचेगा तब तक वो डीन हो चुके होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग पहले हो रही है। तो प्रोफेसर PK गोस्वामी जी जो कि डीन हैं फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के, 1 अगस्त 2023 से संहिता विभाग, तो संपूर्ण सब कुछ तो सिद्धांत संहिता से ही ओरिजिन हो रही है, निकल रहा है। ठीक है मित्रों, फिर बात करते हैं अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद, और हम सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।